اس معاملے کو اب اس طرح آپ اچھالیں گے، وہ جو اصل ایشوز جو ہیں عوام کے، وہ اگر بیک سیٹ پہ چلے گئے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ کروڑوں لوگ جو ہیں اس وقت بے روزگار ہو چکے ہیں۔ آرمی چیف کی توسیع پر حکومت نے بدنیتی کی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا اصل مسئلہ ایکسٹینشن نہیں، غربت، بے روزگاری اور تعلیم ہے۔ توسیع کا معاملہ اچھالنے سے عوامی ایشوز پیچھے جا سکتے ہیں۔ کروڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے، کہاں گئیں 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر؟ اس سے زیادہ جھوٹا اور یو ٹرن لینے والا وزیر اعظم نہیں آیا۔ اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کی بجائے معیشت بہتر کرتے تو یہ حالات نہ ہوتے۔ لندن میں نواز شریف سے سابق افغان صدر کرزئی کی ملاقات۔ برطانیہ میں افغان سفیر طیب جواد بھی حامد کرزئی کے ہمراہ تھے۔ سابق افغان صدر نے نون لیگی قائد کی عیادت کی اور اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ حامد کرزئی نے کہا نواز شریف کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے۔ ان ہاؤس تبدیلی بہت آسان، حکومت 5 ووٹوں پر کھڑی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا حکومت نواز شریف کے 50 روپے کے اسٹامپ کا ہار بنا کر گلے میں ڈالے۔ مریم نواز بیرون ملک گئیں تو 6 ہفتوں میں واپس آ جائیں گی۔ آئینی ترمیم سے وزیر اعظم آفس کو طاقت دی، ووٹ کو عزت دو کے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ لیگی قیادت کے یو ٹرن سے پارٹی میں انتشار کا خدشہ۔ پارٹی فیصلوں سے ناراض رہنماؤں کی چودھری نثار کے دروازے پر دستک۔ 13 ایم این ایز اور 3 سینیٹرز کے سابق وزیر داخلہ سے رابطے۔ چودھری نثار کو پارلیمانی سیاست میں متحرک کردار ادا کرنے کا مشورہ۔ ارکان کا خواجہ آصف کے کردار پر بھی تحفظات کا اظہار۔ سیاسی مداریگر صاحب وہ روز قرآن ہاتھ میں پکڑ کے ڈگڈگی بجا کے اپنی بے گناہیوں کا اعلان کرتے ہیں۔ آپ کا غصہ بالکل بجائے جائز ہے، لیکن یہ غصہ آپ کو اپنی قیادت پہ نکالنا چاہیے، یہ غصہ حکومت پہ نہ نکالیں۔ اور ویسے بھی یہ کون سا پہلی دفعہ ہوا کہ آپ کی قیادت نے آپ کو ووٹرز کے ساتھ ہاتھ کر لیا؟ یہ تو صرف پچھلا ریپلے ٹیلی کاسٹ ہوا ہے۔ فردوس عاشق عوان کی قومی اسمبلی میں قرآن پاک اٹھانے پر تنقید۔ تقریب کے دوران کہا سیاسی مداری قرآن ہاتھ میں پکڑ کر ڈگڈگی بجاتا رہا۔ آپ کو غصہ اپنی قیادت پر نکالنا چاہیے، کیونکہ آپ کی قیادت نے پہلی بار ووٹرز کے ساتھ ہاتھ نہیں کیا۔ آپ کے قائدین نے جو کیا اس کی ذمہ دار حکومت نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا بھارتی آرمی چیف کو منہ توڑ جواب۔ میجر جنرل آصف غفور نے کہا بھارتی فوج کے سربراہ اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بیانات دے رہے ہیں۔ ان کے بیانات معمول کی ہرزہ سرائی اور داخلی بحران سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ مسلح افواج بھارت کو ہر وقت جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ وزیر ثقافت حسن بن طارق نے نئے سلطان کا حلف اٹھا لیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا سلطان قابوس کے انتقال پر اظہار افسوس۔ کہا عمان نے ایک محبوب قائد اور پاکستان نے دوست کو کھو دیا۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں سلطان قابوس عادل حکمران کے طور پر جانے جاتے تھے۔ والسول کی بلال اکیڈمی کے زیر اہتمام شہریوں کی ذہنی و دماغی صحت کے حوالے سے معلوماتی سیشن۔ ایم پی ڈربی موکولونگی سمیت والسول اور برمنگھم کی معروف سیاسی اور سماجی شخصیات شریک۔ ای یو پاک فرینڈشپ فیڈریشن یورپ کے چیئرمین چودھری پرویز اقبال لوثر کی پشاور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان سے ملاقات۔ دورہ یورپ کی دعوت، اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حوالے سے بریف کیا۔ دبئی میں معروف ہاکی سٹار جعفر حسین کے بیٹے کی دعوت ولیمہ کی تقریب۔ پنجاب کے گورنر چودھری سرور کی خصوصی شرکت۔ پاکستانی اداکار، کرکٹ سٹار اور علماء کرام بھی تقریب میں شریک۔ نوبیافتہ جوڑے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ دبئی میں بارش کے بعد ایئرپورٹ پر پانی جمع ہونے سے پروازوں کا سلسلہ درہم برہم۔ رن وے پر جہازوں کا رش، ایندھن بھرنے میں دشواری۔ پی آئی اے سمیت دیگر فضائی کمپنیز کی پروازیں تاخیر کا شکار۔ بلوچستان کے کئی اضلاع میں برف باری، سردی کی شدت میں اضافہ۔ کوئٹہ میں آسمان سے گرتے سفید گالوں نے خوبصورت نظاروں کو 4 چاند لگا دیے۔ ویکنڈ پر برف باری سے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ کراچی میں بھی بادل انٹری دینے کو تیار۔ محکمہ موسمیات نے کل سے بارش کی پیش گوئی کر دی۔
रिमझिम का सिलसिला वक्फे वक्फे से पीर तक जारी रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। को बताएं कि DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं भारतीय फौज के सरबराह अपने लोगों को खुश करने के लिए बयानात दे रहे हैं। मजीद कहा कि उनके बयानात मामूल की हर्जा सराई और दाखिली बहरान से तवज्जो हटाने की कोशिश है। मुसल्लह अफवाज भारत को हर वक्त जवाब देने के लिए तैयार है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इन हाउस तब्दीली सबसे आसान काम है। हुकूमत 5 वोटों के सहारे खड़ी है, एक आध वोट इधर उधर हो गया तो हुकूमत गिर जाएगी। वोट को इज्जत दो के बयानिए का भरपूर दिफा भी किया। इमरान खान के बयान पर तनकीद करते हुए बोले, क्या वजीर आजम 22 करोड़ अवाम को कब्र में लिटाना चाहते हैं? साबिक वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं इन हाउस तब्दीली बहुत आसान, हुकूमत 5 वोटों पर खड़ी है। इमरान खान नवाज शरीफ के 50 रुपए के स्टाम्प का हार बनाकर गले में डाल लें। 50 रुपए के स्टाम्प पे लिखा कि मैं वापस आऊँगा। अब उस स्टाम्प की मेरा ख्याल है इनको चाहिए कि उसकी जो है वो मुसद्दका कापी दे के उसका तवीज़ बना के ना गले में डालें ताकि इनको सुकून रहे। वोट को इज्जत दो के बयानिए का दिफा करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा, आईनी तरमीम से वजीर आजम ऑफिस को ताकत दी, वोट को इज्जत दो के नजरिए से पीछे नहीं हटे। इतराज उस तरीक़ाकार के ऊपर है कि जिस तरीक़ाकार के तहत हम अनड्यू हेस्ट का जो है वो हिस्सा बने। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को भी इसी बात के ऊपर जो है वो इतराज़ है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी ये कहा कि आपने हमसे मशावरत किए बगैर जो है वो हमायत का ऐलान जो है वो क्यों किया। इतराज़ सब का इस तरीक़ाकार पे है, वरना एक्सटेंशन तो ये वही है ना जिसकी हमायत सारे ही जो है वो 19 अगस्त को जो है वो आज से 5 माह पहले जो है वो कर चुके थे। राना सनाउल्लाह ने कहा, वजीर आजम कहते हैं कि सुकून कब्र में है, क्या इमरान खान 22 करोड़ अवाम को कब्र में लिटाना चाहते हैं? उन्होंने कहा है कि सुकून जो है वो कब्र में मिलता है, तो फिर क्या वो पूरी कौम को ही जो है वो कब्र में लटाना चाहते हैं? राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून पंजाब के इजलास में शरीफ बरादरान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद समेत 5 करारदादें मंजूर कर ली गईं। राना सनाउल्लाह ने चौधरी निसार की जानिब से धड़ेबंदी को अफवाह करार दे दिया। राना सनाउल्लाह की बेगुनाही के बयानात डुगडुगी तमाशा है। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी फ़िरदौस आशिक़वान का तकरीब से खिताब। कहती हैं कि किसी केस में जमानत मिलने का मतलब बेगुनाही नहीं होता, मुआशरे को एहतसाब की सख्त ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी फ़िरदौस आशिक़वान ने राना सनाउल्लाह की बेगुनाही के दावे मुस्तरद कर दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, किसी केस में जमानत पर रिहाई मिलने का मतलब बेगुनाह होना नहीं होता। एक सियासी मदारीगर साहब वो रोज कुरान हाथ में पकड़ के डुगडुगी बजा के अपनी बेगुनाहियों का ऐलान करते हैं। मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि आपने मज़हब को सियासत के लिए इस्तेमाल करने की जो रवश शुरू की है, ये पाकिस्तान के अदालती सिस्टम, आइन और कानून की नफी है। फ़िरदौस आशिक़वान ने राना सनाउल्लाह को मुखातिब करते हुए कहा, आपको गुस्सा अपनी क़यादत पर निकालना चाहिए, क्योंकि आपकी क़यादत ने पहली बार वोटर्स के साथ हाथ नहीं किया, पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। आपका गुस्सा बिल्कुल बजाया जायज़ है, लेकिन ये गुस्सा आपको अपनी क़यादत पे निकालना चाहिए। ये गुस्सा हुकूमत पे ना निकालें। और वैसे भी ये कौन सा पहली दफ़ा हुआ कि आपकी क़यादत ने आपको वोटर्स के साथ हाथ कर लिया। ये तो सिर्फ पिछला रीप्ले टेलीकास्ट हुआ है। फ़िरदौस आशिक़वान ने कहा, एहतसाब इस मुल्क और कौम की ज़रूरत है। एहतसाब के बगैर मुआशरा जंगल के कानून जैसा है। वज़ीर आज़म इसी सिस्टम की कमजोरियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद में एक नया इस्लामाबाद बनने वाला है। हाउसिंग शोबे में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करजई ने लंदन में नवाज शरीफ की अयादत की। हामिद करजई का कहना है कि नवाज शरीफ उनके अच्छे दोस्त हैं। दौरा पाकिस्तान के दौरान उन्होंने बेहतरीन मेज़बानी की थी। शहबाज शरीफ कहते हैं करजई जज्बा खैर सगाली के तहत आए थे। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट।
साबिक अफगान सदर हामिद करजई ने लंदन पार्क लेन में फ्लैट्स में नवाज शरीफ की इयादत की। इस मौके पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, लंदन में अफगानिस्तान के सफीर जवाद तैयब, हसन और हुसैन नवाज भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हामिद करजई ने कहा, नवाज शरीफ उनके अच्छे दोस्त हैं। दौरे पाकिस्तान के दौरान नवाज शरीफ ने बेहतरीन मेजबानी की थी। Delighted to have visited my brothers, His Excellency Mia Sahib and Shahbaz Sharif Sahib. I came to inquire about the health of my good friend Mia Sahib. I found him in good health, and on my visits to Pakistan and on his visit to Afghanistan, he's been extremely kind. And I was happy to see him in good health. शहबाज शरीफ ने कहा, हामिद करजई खैर सगाली का पैगाम लेकर आए थे। यकीनन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन ताल्लुकात बेहतरी की सतह पर होने चाहिए। मियाँ साहब की खरीद पूछने आए थे और थोड़ी देर वो वहाँ पर रहे और उन्होंने पाकिस्तान के आवाम के लिए खैर सगाली का पैगाम दिया। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अफ़गानिस्तान के आवाम के लिए मोहब्बत के जज्बात का इज़हार किया और यकीनन दोनों बरादर मुल्क और हमसाया मुल्क हैं। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, आर्मी चीफ की तौसीह पार्टी का मुतफिका फैसला था। पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान से ज्यादा झूठा और यू टर्न लेने वाला वजीर आजम नहीं आया। अपोजिशन को दीवार से लगाने के बजाय मईशत पर तवज्जो देते तो ये हालात न होते। इस बिल की हमायत के लिए पार्टी ने एक फ़ैसला किया था इज्तिमाई मुशावरत के बाद। इस फैसले के तहत लेजिस्लेशन की और इस बिल को सपोर्ट किया। तो माजी में इस तरह की मिसालें मौजूद हैं कि एक्सटेंशंस दी गई, सिटिंग जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ने एक्सटेंशन दी। ये इमरान खान की जो खसलत ये सामने आई है और उसके सारा जोर ऑपोजिशन को दीवार से लगाने के लिए दिन रात उसके ऊपर लगाया और वक्त ज़ाया किया। अगर इसका अपना 100वां हिस्सा भी इमरान खान अगर पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक करने के लिए करते तो आज हालात इतने ख़राब ना होते। शहबाज शरीफ का सहाफ़ियों के सवालात के जवाब में कहना था, उनके खिलाफ केसेस इमरान खान की खसलत है। इमरान खान पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा सकते हैं। PTI की हुकूमत ने साबित कर दिया कि वो नाअहल तरीन हुकूमत है। इमरान खान नाअहल तरीन वज़ीर आज़म हैं और अगर इसी तरह मामला चलता रहा तो खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, एंड आई होप आई एम प्रूवन रॉन्ग, पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान इमरान खान को। नवाज शरीफ शदीद दिल के आर्जा में मुब्तला हैं और उन्हें आइंदा हफ्ते रॉयल ब्रॉम्पटन अस्पताल में दाखिल कराए जाने का इम्कान है। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। हिलाल एकेडमी के ज़रिए एहतमाम वॉल्सल के पेल्फ्री एरिया में मेंटल हेल्थ सपोर्ट सेशन का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी MP डर्बी माकोलोंगी समेत वॉल्सल और बर्मिंघम की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तफसीलात इरफान अली फराज की इस रिपोर्ट में। बिलाल एकेडमी के ज़ेर एहतमाम वॉल्सल के पल्फ्री एरिया में मेंटल हेल्थ सपोर्ट सेशन की इफ्तिताही तकरीब का आगाज खिलाफत कलाम इलाही से किया गया। इस मौके पर मुकर्रीन ने बिलाल एकेडमी की इस नेक मकसद को एहसन इक़दाम करार देते हुए अपने भरपूर तावन का यकीन दिलाया। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए MP मार्कोलोंगी, साबिक काउंसलर मोहम्मद आरिफ समेत दीगर ने कहा कि बिलाल एकेडमी का ये कदम इंतहाई काबिल तारीफ है। बरतानिया में मुसलमान कम्युनिटी ने अवामी खिदमत का जो बेड़ा उठा रखा है वो किसी से ढका छुपा नहीं। Imam Ibrahim, who has worked with me for over these 2 years on my real passion, which is all about mental health and mental health among ethnic communities actually, where perhaps the issues are less well understood. And he has set up this Bilal Academy here in Warsaw under enormous strain and effort to raise the funds, not only to buy it, but now to run it as well. And I'd like to thank all of those donors that took part in that. Thank Imam Ibrahim for what he's doing, because I know that this facility is going to be a fantastic asset for everybody in the community. It's an absolute honour to be here tonight at the launch of the Mental Health Initiative at Bilal Academy. We've always had strong links with the Imam, and we'd be delighted to inform and help with this initiative, which is absolutely fantastic initiative, and we will be there to support, give advice, walk alongside.
with this initiative. उनका मजीद कहना था कि यहाँ मेंटल हेल्थ सपोर्ट का जो काम शुरू किया गया है वो इमाम इब्राहिम और इनकी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं और जहाँ तक मुमकिन हुआ वो इनके साथ भरपूर ताउन करेंगे। It's a great pleasure to be here today at the Bilal Academy at the launch of the mental health support services. It's a much needed service here in the community of Warsaw and I wish it all the very best. मेंटल हेल्थ सपोर्ट सेशंस का लॉन्च हुआ, इसकी इफ्तिताह हुई और अल्हम्दुलिल्लाह वॉर्सल के अल्हम्दुलिल्लाह प्रोमिनेंट मेंबर्स MP माको लोंगी और वॉर्सल साइकोलॉजिकल हेल्प जो इस मेंटल हेल्थ सपोर्ट सेशन में 20 साल से अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। जो डिप्रेशन के शिकार है, जो मेंटल वेलबींग के जो शिकार हैं, तो इन तमाम हज़रात की मालूमात हमें हमारे सामने आई हुई है और इसके हल भी हमारे सामने आया हुआ है। बिलाल अकेडमी ने इसमें कदम उठाया है। तकरीब में काउंसलर नज़ीर अहमद, काउंसलर अल्लाह दिता, काउंसलर शबीना दिता और दीगर ने खुसूसी शिरकत की। हाउंसलो जामिया मस्जिद में ब्रिटिश पाकिस्तानियों के नए शनाख्ती कार्ड के हुसूल और तजदीद का नादरा सर्जरी में प्रोसेस किया गया। हाउंसलो जामिया मस्जिद इंतजामिया की जानिब से दरख्वास्त गुजारों को इब्तदाई मालूमात फराहम भी की गई। वसीम कासमी की रिपोर्ट। वेस्ट लंदन के इलाका हौंसलो की जामा मस्जिद में नादरा टीम ने छुट्टी के रोज़ पाकिस्तानी अक्सरियती इलाकों में नादरा सर्जरी के जरिए शनाख्ती कार्ड का हसूल घर की दहलीज पर मुमकिन बनाया। बरतानवी पाकिस्तानियों की कसीर तादाद इस सहूलत से मुस्तफीद हुई और पाकिस्तान हाई कमीशन के ऐसे इकदाम को सराहा। नादरा मैनेजर गुलाम कादिर रज़ाकी ने कहा, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड इसलिए दिया जा रहा है ताकि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी आसानी से अपने वतन आ जा सकें और दीगर मामलात में पाकिस्तानी नेशनल की हैसियत से पेश हो सकें। उन्होंने मजीद कहा, POC हाई कमीशन की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। POC कार्ड के लिए अपॉइंटमेंट या हाई कमीशन आने की जरूरत नहीं है, घर से बैठकर भी इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। पाकिस्तान हाई कमीशन हमारे साथ जो है पिछले कई सालों से हमारे साथ तावन कर रहा है। साल में हम 2-3 दफ़ा यहाँ पे सर्जरीज करवाते हैं और इसमें आप देख रहे हैं कि लोग सुबह से यहाँ आते हैं अपने बच्चों के साथ, उनको उनकी डोर स्टेप के ऊपर जो है वो तमाम सहूलियात जो हैं वो पाकिस्तान हाई कमीशन जो है वो नादरा की सर्जरी के ज़मन में दे रहा है। बच्चे जो यहाँ पे देखें, आप सुबह से देखें तकरीबन 9 बजे से हमने ये काम स्टार्ट किया और इस वक्त भी 2:30 बज रहे हैं और तकरीबन जो है अभी भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। जनरल सेक्रेटरी मस्जिद कमेटी शफीकुर रहमान समीर और दीगर ने कहा, बरतानिया में मसाजिद दीन इस्लाम की तालीमात को आम करने के अलावा कम्युनिटी की खिदमत में भी सरगर्म रहती हैं। बहुत बड़ी तादाद में हमने लोगों को यहाँ रजिस्टर्ड किया और कल भी इंशाल्लाह यही एक्सपेक्टेड है। 2 दिन की ये सर्जरी है और पाकिस्तान हाई कमीशन अपने सिटीजन्स को जितनी सहूलियात दे सकता है वो कोशिश करता है देने में और इसी सिलसिले में हम यहाँ पे आए हुए हैं। Today's events at Hounslow Jami Masjid is the Nadra surgery and Hounslow the Muslim population is about 38,000 people and a lot of that is from the Pakistani community, so this is a great opportunity to facilitate the community. इतना ज़बरदस्त इंतज़ाम है कि लोगों का टाइम बच रहा है और लोगों का जो ट्रैवलिंग टाइम है बहुत सिक्योर हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक तो इजी मेथड है, वो आए और विद इन 30 मिनट्स इन्होंने ये टाइम जितना भी काम है वो कंप्लीट किया और घर चले गए। शनाख्ती कार्ड के हसूल के लिए आने वाले अफराद ने लंदन हाई कमीशन और मस्जिद इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर नादरा टीम ने दरख्वास्त गुजारों से फीस लेकर मौके पर फोटो डाटा एंट्री और फिंगरप्रिंट लिए, जबकि हौंसलो जामा मस्जिद की जानिब से दस्तावेजात में रहनुमाई की गई और फोटोकॉपी समेत चाय और जूसेस का एहतमाम भी किया गया। वसीम काजमी, 92 न्यूज़, लंदन। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने के आउटरीच प्रोग्राम के तहत अमेरिका के यूनिवर्सिटी तलबा के साथ एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर असद मजीद खान ने तलबा को पाक अमरीका ताल्लुकात और मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक आगाह किया। तफसीलात खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने के आउटरीच प्रोग्राम के तहत अमेरिका की यूनिवर्सिटी तलबा के ग्रुप ऑसगोड सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज के साथ मालूमाती तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर असद मजीद खान ने तलबा को पाकिस्तान के बारे में एक वसी जायजा पेश किया। उनका कहना था कि करतारपुर राहदारी का तारीखी इफ्तिताह खित्ते में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फरोग देने के हमारे अज़्म की अक्कासी करता है। असद मजीद ने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने 7 दहाइयों पुराने ताल्लुकात की दिल की गहराइयों से कदर करता है। इस तकरीब में मिस्टर शेल्टन विलियम्स समेत तंजीम के फैकल्टी मेंबरान ने भी शिरकत की। चेयरमैन EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप चौधरी परवेज इकबाल लुखसर ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान से मुलाकात की है।
मुलाकात में परवेज इकबाल औसर ने महमूद खान को EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप की सरगर्मियों से आगाह किया और यूरोप में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के अमूर पर भी रोशनी डाली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने मसला कश्मीर को यूरोप और यूरोपीय पार्लियामेंट के मेंबरान के दरमियान उजागर करने के लिए परवेज औसर के किरदार को सराहा। उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को यूरोप आने की दावत दी, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। इस मौके पर परवेज इकबाल औसर का कहना था कि KPK में सियाहत के हवाले से भरपूर कशिश और मौके मौजूद हैं, जिसका एतराफ़ दुनिया भर में किया जा रहा है। दुबई में मारूफ हॉकी स्टार जाफर हुसैन के बेटे की दावत वलीमा की तकरीब में पंजाब के गवर्नर चौधरी सरवर ने खुसूसी शिरकत की और नौ बेआता जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तकरीब में पाकिस्तानी अदाकार, क्रिकेट स्टार्स और उलमा कराम समेत कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने शिरकत की। तफसीलात सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। मुत्तहदा अरब अमारात की रियासत दुबई में मारूफ साबिक हॉकी स्टार जाफर हुसैन के बेटे सलमान जाफर की शादी खाना आबादी की खुशियों भरी तकरीब उस वक्त सियासी और समाजी इज्तिमा में तब्दील हो गई जब इसमें पाकिस्तान से खसूसी तौर पर शादी की तकरीब में पंजाब के गवर्नर चौधरी सरवर ने शिरकत की। इस मौके पर गवर्नर चौधरी सरवर ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए दूल्हे दुल्हन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जाफर साहब हमारे भाई हैं, इनकी फैमिली की शादी थी, तो मैं खसूसी तौर पर सिर्फ शादी के लिए यहाँ पर हाज़िर हुआ था और माशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे और उनमें और इत्तफाक पैदा करे और दो ख़ानदानों में मोहब्बत जो है बढ़े और ये शादी कामयाब हो। सियासी सूरत हाल और महंगाई पर बात करते हुए उनका कहना था कि महंगाई उनको विरसे में मिली थी, लेकिन ये इस हुकूमत का कारनामा है कि 4 माह में करंट अकाउंट खसारा $4 अरब से कम होकर $1 अरब 50 करोड़ पर आ गया है। देखिए जी, महंगाई का इशू तो है और लेकिन ये इशू इसलिए है कि जब हमने हुकूमत संभाली है तो मईशत की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो एक तो हमारे पास ये ऑप्शन थी कि हम टेम्परेरी मेजर्स करते, टेम्परेरी लोगों को रिलीफ देते और इन द लॉन्ग रन अपने मुल्क के लिए मसाइल खड़े करते, लेकिन हमने मुश्किल फ़ैसले किए हैं, हमने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाई है। और सबसे बड़ा हमारा चैलेंज ये था कि जो डॉलर मुल्क से बाहर जाते थे और मुल्क से अंदर आते थे, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, उसमें $20 बिलियन की शॉर्टफॉल थी। और आप फिर सोच लें कि जब $20 बिलियन हर साल आपके अकाउंट से बाहर निकल जाए तो जाहिर है फिर डॉलर जो है वो मजबूत होगा, रुपया कमज़ोर होगा। तो अब मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो पिछले 4 महीनों में $7 बिलियन से कम होकर तकरीबन $1.5 बिलियन जो है वो आ गया है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी के एक सहाफ़ी को थप्पड़ मारने के सवाल पर उनका कहना था सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और सहाफ़ियों को भी मामले को हवा देने की बजाय ठंडा करना चाहिए। देखिए भाई, ये जो पर्सनल इश्यूज़ हैं हमें सबको, मैं समझता हूँ कि हम सबको एक दूसरे का एहतराम जो है करना चाहिए। सहाफ़ी जो हैं बिल्कुल हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं, तो मैं समझता हूँ कि अब इस इशू को आप लोग जो है ना और हवा देने के बजाय इसको इसमें कमी लाएं। शादी खाना आबादी की तकरीब में मारूफ इस्लामी स्कॉलर अल्लामा ताहिर अशरफी भी शरीक हुए और दूल्हा दुल्हन को मुबारकबाद दी। अल्लामा ताहिर अशरफी के अलावा मारूफ अदाकारा और गुलकारा, फिल्म स्टार मेगा, क्रिकेट स्टार अब्दुल रज़ाक, सुहेल तनवीर समेत पाकिस्तान से आए साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब सरदार शमीम, मोहसिन बेग, चौधरी मुनीर, सलाहुद्दीन बट, मुनीर अवान, पहलवान नदीम और डॉक्टर राशिद समेत दीगर मारूफ सियासी और कारोबारी शख्सियात भी शादी की खुशियों में शरीक हुए। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहदा अरब अमारात। और अब बात करेंगे मौसम की। कोयटा में बर्फबारी के दिल फरेब नज़ारों ने हर तरफ चांदी बिखेर दी। फैमिलीज और मंचलों की टोलियां भी वीकेंड पर बर्फबारी को एंजॉय करने के लिए घरों से बाहर निकल आई। कोयटा से देखते हैं किफायत अली की रिपोर्ट। वीकेंड पर बर्फबारी के दिल फरेब नजारे। वादी कोयटा में बर्फ के सफेद नरम गालों ने हर सू चांदी बिखेर दी। हवाओं के दोष पर उड़ते बर्फ के पंख जमीन पर गिरने की देर थी। शहरियों के चेहरों पर तो जैसे खुशियां लौट आईं। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में बर्फबारी के बायस मौसम तो सर्द हुआ, मगर शहरी भी इसकी परवाह किए बगैर घरों से बाहर निकल आए। बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। 2 साल से पहली मर्तबा बर्फ को देख रहे हैं। कोयटा जिसे हम बलूची में शाल कहते हैं, आज कोयटा शाल ने हमारे साथ वफा किया है। मौसम का अपना ही मज़ा है, सर्दी का अपना ही मज़ा है।
और अल्लाह ताला का बहुत करम है, बहुत फजल है हमारे ऊपर कि अल्लाह ताला ने इस वक्त हमें एक ऐसा मौसम नसीब किया है जो बर्फबारी हो रही है और हम लोग बाहर निकले, मैं बच्चों के साथ निकला हूँ। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल क्वेटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में बर्फबारी का इम्कान है। ज़ियारत, चमन, किला अब्दुल्ला, कल्लात और मस्तुंग में भी बर्फबारी के बायस हर शय ने सफेद चादर ओढ़ रखी है। वादी कोयटा में सर्दी की शिद्दत के साथ ही गैस प्रेशर भी उड़नछू हो गया, जिससे घरों में खुद को ईंधन फराहम करने में मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन आमिर हुसैन के साथ किफायत अली, 92 न्यूज़, कोयटा। दुबई में गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश से एयरपोर्ट पर पानी जमा होने से परवाज़ों का सिलसिला मुतासिर हुआ है। 2 रोज तक होने वाली बारिश की वजह से दुबई एयरपोर्ट पर कई मकामात पर पानी खड़ा है, जिसकी वजह से परवाज़ों का सिलसिला मुअत्तल होकर रह गया। खराब मौसम और रनवे पर खड़े पानी की वजह से दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान जाने वाले PIA की परवाज़ें भी बुरी तरह मुतासिर हुई। कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, लाहौर और फैसलाबाद जाने वाली परवाज़ें ताहाल दुबई एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। जहाज़ों का अमला मुसाफिरों की देखभाल में मशगूल है। दुबई एयरपोर्ट पर जहाज़ों की पार्किंग की जगह ख़त्म हो गई है, जिस वजह से जहाज़ों में ईंधन भरने में मुश्किलात का सामना है। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।